So this is 2024 UPSC optional ESIR. So this is about the book by Sasank Tyagi sir of UPSC, and we will do this. तो कंप्लीट इस PDF कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, एंड इसका मोटिव ये है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग बढ़े। एग्जैक्टली कभी भी कोई इस आंसर को लिख नहीं सकता है एग्जाम में, बट जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो, अंडरस्टैंडिंग हो, उतना अच्छा आंसर आप एग्जाम में डिलीवर कर सकते हैं। तो कम से कम आप एक बुक पर कभी भी रिलाई ना करें। यहाँ क्वेश्चन है, उसका आंसर यहाँ से देखें, कुछ और भी नोट्स का देखें, कुछ और भी नोट्स का देखें, 3-4 कंबाइन करने के बाद ऑटोमेटिकली आप अपना कुछ एडिशन कर सकते हैं। तो बेस तो हमें चाहिए, फाउंडेशन तो चाहिए किसी का, जिस पे हम लोग अपना समझ खुद बनाएंगे। तो एक ढांचा तो बहुत जरूरी है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं जो आया हुआ है, प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट। प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट, तो दिस थ्योरी ऑफ स्टेट इज बेस्ड ऑन द दिस प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी। क्या है? प्लूरलिस्ट theory of sovereignty. So it emerged as a criticism of monastic theory of sovereignty, which regards authority as a monopoly of state. The pluralist यानी कि बहुत ज़्यादा plural sense में होता है, ज़्यादा मालिक हो, however argues for decentralized authority. ज़्यादा मालिक मतलब decentralized, not control in one hand. So the most prominent scholar of this school of thought are, सबसे पहले हमारे पास है लास्की एंड मैकाइवर। क्या है? लास्की एंड मैकाइवर। According to Lasky, the universe is multidimensional and main being part of this universe have a multidimensional personality. ठीक है, तो लास्की किस तरह इसको अप्रोच कर रहे हैं? बोल रहे हैं कि मल्टी डायमेंशनल हम लोग हैं, हम लोग बनाए गए मल्टी डायमेंशनल इस यूनिवर्स में, तो हमारा पर्सनालिटी मल्टी डायमेंशनल है। So he has a multiple needs which are fulfilled by various association. Lasky regarded state as only one such association. Since state alone cannot fulfill all the needs of the man, other association deserves share in man's obligation. He also regarded concentrated sovereignty a legal fiction. क्या है? Concentrated sovereignty a legal fiction. Due to both internal traditional and custom and external international laws and organization limitation on state sovereignty. So MacIver gave the concept of service state. इसका क्या आता है? अब एक आता है MacIver का service state. State being a serviceman. According to him, the state deserves authority only when it fulfills responsibilities. State commands because it serves. It is the people who have the ultimate power. The state cannot exercise arbitrary power. So state is both child and guardian of the law. तो क्या है लाइन? तो स्टेटमेंट निकल के आता है, state is both child and guardian of law. So pluralist theory has however been criticized for inconsistencies. क्या है? इसमें inconsistency आता है, विरोधाभास रहे, contemplation होगा, has been criticized. ठीक है, while they advocate a minimal state, they also regard state as the keystone of social architecture which has the role of equilibrium maker. and एक समय आप बोलते हैं स्टेट इंपॉर्टेंट है, जब स्टेट को पास पावर जाता है स्टेट उल्टा मतलब आर्बिट्ररी काम करने लगता है. सो स्टेट एज द कीस्टोन ऑफ सोशल आर्किटेक्चर. मिनिमम स्टेट का बात भी करेंगे, फिर स्टेट को आप ज्यादा पावर भी देंगे. सो इन रियलिटी वी नेवर सी एक्सरसाइज ऑफ सोवरेनिटी एज सजेस्टेड बाय हॉब्स. वी नेवर सी एक्सरसाइज ऑफ सोवरेनिटी as suggested by Hobbes in contemporary times of globalization and global common challenges where NGOs, parastatals, communities assist a state. Pluralist theory of a state seems closer to reality. तो देखिए यहाँ पे has been criticized for inconsistencies while they advocate a minimal state. They also regard state as the keystone of social architecture which has this role of equilibrium maker. तो ये स्टेट का काम है. और जो सजेस्टेड बाय हॉब्स के द्वारा जो सजेस्ट किया था सोवरेनिटी, एब्सोल्यूट सोवरेनिटी जो सब पे कंट्रोल करेगा, वो भी नेवर सी एक्सरसाइज ऑफ दिस सोवरेनिटी. तो हम लोग को ये हॉब्स वाला नहीं दिखने को मिलता है, और खासकर अभी कंटेम्प्रेरी टाइम्स में ये और नहीं रह रहा है, बिकॉज दिस इन कंटेम्प्रेरी ग्लोबलाइजेशन एंड ग्लोबल कॉमन चैलेंजेस. क्या है? ग्लोबलाइजेशन एंड ग्लोबल कॉमन चैलेंजेस, यानी कि एक कंट्री में, जैसे आप सपोज करिए इंडिया के पास आपके सोलर अलायंस पावर है, तो सपोज कोई पोलर एरिया और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर का जो एरिया जिसके पास नहीं, तो वो दे वांट टू कोलैबोरेट विद इंडिया. सिमिलरली इंडिया वांट टू कोलैबोरेट विद द कंट्रीज लाइक अफ्रीका, साउथ अमेरिका, बट फॉर ऑयल एंड मेटल रिजर्व्स लाइक लिथियम, आयरन, जो भी तरह का हो. तो ये जो चैलेंजेस है, इस तरह का जो नीड है हम लोग को भी लगेगा. तो हम लोग को चाहिए क्या, ग्लोबलाइजेशन के टाइम में तो हम लोग एक सोवरेनिटी का बात, वहाँ पे थोड़ा स्टेट को डाउन होना पड़ेगा.
सो इसी तरह देख सकते हैं कि प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट सीम्स क्लोजर टू रियलिटी। और सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है क्या है, लॉक व्यू ऑफ रिवॉल्यूशन। लॉक का जो व्यू है रिवॉल्यूशन पे क्या है। सबसे पहले जॉन लॉक रिगार्डेड एज द फादर ऑफ लिबरलिज्म। ही बिलीव्ड इन द नेचुरल राइट्स व्हिच आर फंडामेंटल टू human existence. The second treatise of the government, Locke has given the theory of government. तो ये क्या है, second treatise of government is this is the book written by Locke which paves the way for the theory of revolution, which paves the way for theory of revolution. So Locke idea of government is based on social contract. क्या है यहाँ पे आपका आएगा social contract. He is a social contract thinker which leads to the formation of representative government. क्या है, बात करेंगे representative government का। जॉन लॉक इज रिगार्डेड एज थ्योरिस्ट ऑफ कंसेंट। कौन से हैं ये आपके हैं, थ्योरिस्ट ऑफ कंसेंट। कंसेंट लेके काम करना चाहते हैं, कंसेंट। गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द कंसेंट ऑफ द गवर्न। लॉकियन स्टेट इज अ लिमिटेड स्टेट एज पीपल हैव ट्रांसफर्ड ओनली थ्री राइट्स, जो है मेक लॉज, एग्जीक्यूट लॉज एंड एडजुडिकेट, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। पीपल डिड नॉट ट्रांसफर द राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। तो ये चीज हमें इंडिया में भी इस चीज को देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं। So according to Locke, the government is the trust and people are trustee. आपको जो करना है, लेकिन आपके पास पावर नहीं उसको बेचने का। जैसे ट्रस्ट जिस तरह काम करता है, thus people have the right to revolt if the government breaches the trust. So government cannot make laws to take away life, liberty, property as they are inseparable, inalienable to human existence. People have the power to revolt. People have the power to revolt if the state subjugates its own people and thus popular consent form the basis for legitimate government. So Locke revolution is however different from Marxian revolution. It is peaceful constitutional change in the set of people ruling as government. ये क्या है, एक तरह का पीसफुल है, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज मांगते हैं, ना कि ब्लड बाथ, मर्डर, बैरल ऑफ गन, ऐसा नहीं है यहाँ पे। पीपल रूलिंग एज अ गवर्नमेंट, इट एम्स टू प्रिजर्व सोसाइटी एज पीपल आर एनलाइटेंड सेल्फ। ये बोल रहे हैं कि सोसाइटी को बचा कर रखेंगे क्योंकि यहाँ पे पीपल जो है दे आर अवेयर ऑफ देयर राइट्स, और ये बस दे वांट द चेंज ऑफ गवर्नमेंट, नॉट द want to take life of another people। तो ये हो गया आपका लॉक का जो व्यू ऑन रेवोल्यूशन है। रिवोल्यूशन के पे जो इनका जो विचार है ये हो गया लॉक का। सो लॉक थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन सर्व एज द बेस फॉर फ्यूचर रिवोल्यूशन अगेंस्ट टायरेनी एंड ऑथोरिटेरियनिज्म। यानी कि जब भी एक सरकार जो आ जाए जो कुछ भी तानाशाही की तरह करने लगे, तो इट लेड टू द development of system of checks and balances in the democratic society. In the democratic society, development of system of checks and balances. तो ये हो गया आपका checks and balances। तो ये इसका एग्जांपल कहाँ देख सकते हैं, इंडिया है, यूएसए है, यूके है। तो in the modern world, every country is practicing some kind of this checks and balances। चाइना में थोड़ा कम दिखने को मिलता है, हो सकता है वहाँ हो, बट बाहर के मीडिया को नहीं दिख रहा हो ऐसा, तो डिपेंड्स। बट this revolution is a base for future revolution against tyranny authoritarianism। ठीक है, जैसा कि नाजी टाइम में देखने को मिला, तो वैसा ना हो उसके लिए लॉक का जो थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन इज वेरी बैलेंस्ड और टाइम टेस्टेड थ्योरी। नाउ अनदर क्वेश्चन वी हैव इज डिक्लाइन ऑफ लिबरलिज्म। सो लिबरलिज्म कैसे खत्म होते जा रहा है, कम हो रहा है, क्या ऐसा लग रहा है लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट कम होते जा रहा है? यस, राइट विंग गवर्नमेंट आपको यू विल सी अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर्मिंग गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है कि लिबरलिज्म की वजह से इकोनॉमिक लॉस हो रहा है एंड डेवलपमेंट उस तरह से नहीं हो पा रहा है द वे दे वांट। तो अगर कैपिटलिज्म को प्रोटेक्ट रखना है तो लिबरलिज्म को थोड़ा डाउन करना पड़ेगा। बोथ कैन नॉट रन टुगेदर। तो देखते समझते कोशिश करते हैं क्या है ये। सो लिबरलिज्म हैज बीन द लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग आइडियोलॉजी बिकॉज ऑफ इट्स फ्लेक्सिबल नेचर, हाउएवर इट्स कोर वैल्यूज। तो सबसे पहले लिबरलिज्म में कोर वैल्यूज क्या है? इंडिविजुअल राइट, एटोमिस्टिक मैन, लिमिटेड स्टेट एंड कैपिटलिज्म। देखिए यहाँ गया ना कैपिटलिज्म, लिबरलिज्म का लिमिटेड स्टेट आर फेसिंग इंक्रीजिंग क्रिटिसिज्म फ्रॉम डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट। सबसे पहले हम लोग उसको ब्रेक डाउन किए और इसमें आता है कैपिटलिज्म, और ये क्या है कि अच्छे से थ्राइव नहीं कर पा रहा है। So are facing increasing criticism from different school of thought. So liberalism has contributed to the development of human rights. It favor equality through rule of law and protected. अगर आप on the basis of liberalism, liberal philosophy, you are saying that I will construct this kind of tower in this area, or that no one has before done this something like this.
तो क्या होता है कि आप जब डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे यू आर हार्मिंग सो मच ऑफ द सराउंडिंग। तो ये क्या है, आप एक तरह से आपका लिबरल जो फिलोसफी है वो वहाँ के जो एग्जिस्टिंग फिलोसफी उसको चैलेंज कर रहा है, तो इसीलिए ये साथ में नहीं चल सकता है। ठीक है, तो लिबरल हैज कम टू डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स, इट फेवर्ड इक्वलिटी थ्रू रूल ऑफ लॉ एंड प्रोटेक्टेड इंडिविजुअल लिबर्टी थ्रू लिमिटेड गवर्नमेंट। लिबरलिज्म प्रोमोटेड डेमोक्रेसी एंड टॉलरेशन। लेकिन अगर आप डेमोक्रेसी देखते हैं कहीं भी किसी भी कंट्री में, तो डेमोक्रेसी फुली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। टॉलरेशन का बात करें तो कहीं ना कहीं एवरीथिंग इज बायस्ड विच सेफ गार्डेड इंडिविजुअल राइट्स। हाउएवर इट फेसेस चैलेंज फ्रॉम बोथ इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन एंड एक्सटर्नल प्रेशर। तो यही इसका चैलेंजेस है। जैसे कि 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, इरोडेड पब्लिक ट्रस्ट इन लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज। इट रेज क्वेश्चन ऑन दी एबिलिटी ऑफ लिबरल इकोनॉमिक। आप दूसरे को पैसा दे रहे हैं कमाने के लिए और वो आपके पैसा को बर्बाद कर दे रहा है। तो आप लिबरल पॉलिसी का बात कर रहे हैं कि हाँ फ्री मार्केट ये वो ऐसा, आप अपने आप को ग्रो करना चाह रहे हैं, लेकिन तो अब क्या करें, आप अपने इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे, नहीं हम किसी को पैसा नहीं देंगे, सब बर्बाद कर दे रहा है लेके। तो लिबरल पॉलिसी इस तरह क्रिटिसाइज में आ रहा है। It raised the question on the ability to liberal economic principle to deliver economic prosperity. Marx has criticized liberalism as a tool of economic inequality, ठीक है, which is evident in the growing inter and intra-national inequalities. So COVID-19 pandemic served as as an eye opener to reevaluate liberalism with the hoarding of medical supplies for short-term market gains. तो ऐसा ही होता है लिबरलिज्म में। लिबरलिज्म के नाम पे कर क्या रहे हैं, दे आर गेनिंग फ्रॉम द मार्केट, दे आर गेनिंग फ्रॉम द supplies, they are gaining from hoarding. So liberalism has been charged with ethnocentrism, overlooking multiculturalism and promoting uniformity. Has been charged with ethnocentrism. तो यहाँ पे आते हैं महातिर मोहम्मद, ASEAN values has criticized human right as a tool Western government to use subvert ASEAN countries. यानी कि अभी जैसे देखिए, अभी यूएसए का चेहरा बाहर दिख क्या रहा है, असली चेहरा इसका दिख क्या रहा है, ह्यूमन राइट कमीशन ये सब वो आप प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन जब खुद का इकोनॉमी खराब हुआ तो ये सब चीज़ से अपने आप को बैकअप कर रहे हैं, फंड को रोक रहे हैं, होर्डिंग कर रहे हैं। तो ये ह्यूमन राइट एज अ टूल टू वेस्टर्न गवर्नमेंट टू यूज सबवर्ट आसियन countries. Communitarian like Michael Walzer have criticized liberalism for neglecting community as an important value. जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया, किसी बिल्डिंग को बना रहे हैं, किसी टावर को बना रहे हैं, तो वहाँ के जो कम्युनिटी है आप उसकी इंपॉर्टेंट वैल्यूज को आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ लिबरलिज्म की नहीं आप विचारधारा को। सो सैमुअल पी हंटिंगटन गेव द आइडिया ऑफ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, हाईलाइटिंग द राइज ऑफ इस्लामिक फंडामेंटलिज्म एज अ चैलेंज टू लिबरलिज्म। अफगानिस्तान का एग्जांपल ले सकते हैं आप। राइज ऑफ राइट विंग गवर्नमेंट अक्रॉस द ग्लोब हैव क्वेश्चन द रिलेवेंस ऑफ लिबरल वैल्यूज एंड पॉलिसीज। तो ये जो अभी जो रिसेंट आपको देखने को मिलेगा राइट विंग गवर्नमेंट। सो जोसेफ स्टिग्लिट्ज हैज क्रिटिसाइज्ड लिबरलिज्म फॉर वन साइज फिट ऑल मॉडल। ठीक है, तो इनकी तरफ से भी यही स्टेटमेंट आता है लिबरलिज्म को बोलने के नहीं, आप एक लिबरल कॉन्सेप्ट को लेकर पूरे वर्ल्ड में आप ट्रैवल नहीं कर सकते, हर जगह का नीड अलग है, हर जगह का प्रॉब्लम अलग है, आप एक पॉलिसी आप हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। नीड ऑफ द आवर एज प्रोफाउंडेड बाय क्लॉस सचिव इज रीसेटिंग कैपिटलिज्म। रीसेटिंग कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म को आप रीसेट करिए। देयर इज अ नीड टू रिफॉर्म लिबरलिज्म टू अडॉप्ट टू चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर। चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है, आपका जो कॉन्सेप्ट है ये सब पे फिट नहीं बैठ सकता है, आप जो पॉलिसी लेके चल रहे हो सब पे अप्लाई नहीं हो सकता है। तो यही कहना चाहा जा रहा है और यही प्रॉब्लम है, और दिस इज लेड टू द डिक्लाइन ऑफ लिबरलिज्म। क्या डिक्लाइन हो रहा है, ये सब जो फिलोसफर है ये दे आर क्रिटिसाइजिंग। तो आई विल मार्क द नेम्स हियर, इंपॉर्टेंट नेम। सबसे पहले हमारे पास जो नाम है वो देखिए, हमारे पास है महातिर मोहम्मद, इनका क्या है, आसियन वैल्यूज। फिर हमारे पास है दूसरा जो नाम है हमारे पास है वो है माइकल वाल्जर, ही इज अ कम्युनिटेरियन एंड कम्युनिटेरियन हैव क्रिटिसाइज्ड ऑलवेज लिबरलिज्म फॉर नेग्लेक्टिंग कम्युनिटी एज एन इंपॉर्टेंट वैल्यू। फिर है सैमुअल पी हंटिंगटन, इनका जो आइडिया है वो है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। ये देखिए क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, कहीं ना यहाँ पे पी हंटिंगटन द आइडिया ऑफ यस क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। फिर हाईलाइटिंग इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, ठीक है, रिलेवेंस ऑफ लिबरल, ये तो ये हो गया। अब आप हमारे पास लास्ट दो नाम है वो है जोसेफ स्टिग्लिट्ज, ये भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इनका जो मॉडल क्या बोलते हैं, वन साइज फिट्स ऑल, और एक क्लॉस स्टीव रीसेटिंग कैपिटलिज्म। तो ये इंपॉर्टेंट नाम सब यहाँ से निकल के आया, ठीक है। तो ये हम लोग को डिक्लाइन ऑफ लिबरलिज्म में दिखाना है क्यों क्या हो रहा है। Now, दूसरा क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन वी हैव इज लिंकेज बिटवीन पावर एंड हेजीमनी। हेजीमनी और पावर में क्या लिंकेजेस है, देखते हैं। पावर और हेजीमनी क्या है, ये बहुत ही क्लोजली लिंक कॉन्सेप्ट है।
with hegemony representing one of the dimension of power. क्या है? Is the one of the dimension of power. This is power and इसका जो बहुत dimension है that is hegemony. दूसरा पावर का डायमेंशन हम लोग बोल सकते हैं ऑथोरिटी, तीसरा बोल सकते हैं कोहर्शन. तो दीज आर द डायमेंशन ऑफ पावर. तो उसमें से एक निकल के आता है हेजेमनी विच इज सॉफ्ट पावर ऑफ, इज अ काइंड ऑफ सॉफ्ट पावर. अब यहाँ पे देखिए नाम क्या है, स्टीवन ल्यूक्स इन हिज बुक पावर अ रेडिकल व्यू gives three phases of power, that is influencing decision making, shaping a political agenda and manipulation of perception. क्या है आपका? मैनिपुलेशन ऑफ परसेप्शन. अगर आपके पास पावर है तो आप किसी के परसेप्शन को मैनिपुलेट कर रहे हैं. डिसीजन मेकिंग, किसी के डिसीजन को आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, किसी आप पॉलिटिकल एजेंडा को आप बना रहे हैं. जैसे कि वोट बैंक एजेंडा जो इंडिया में जब इलेक्शन के पहले बनता है, वो क्या एक तरह का एक नैरेटिव सेट किया जाता है, इसके एक मैनिपुलेट किया जाता है लोगों को, असली मुद्दे से भटका के आप उस तरफ लेके जाएगा और वहाँ पे आप असली अपना प्रॉब्लम भूल जाएंगे. सो ग्रैम्सी कॉन्सेप्ट ऑफ हेजेमनी इज सीन एज एग्जांपल ऑफ थर्ड डायमेंशन. ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ हेजेमनी ये एक तरह का थर्ड डायमेंशन है. तो पावर रेफर्स टू एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस और कंट्रोल अदर्स. इट कैन बी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और आइडियोलॉजिकल. द ग्रैम्सियन व्यू ऑफ पावर रिप्रेजेंट आइडियोलॉजिकल पावर. ठीक है, तो ग्रैम्सी का जो व्यू ऑफ पावर है वो क्या है? एक आइडियोलॉजिकल पावर है. क्या है? आइडियोलॉजिकल पावर है. इट फोकस ऑन कल्चरल हेजेमनी, यानी कि आपके रहने का तरीका ही बदल देंगे, सोचने का तरीका बदल देंगे. वेयर द डोमिनेंट क्लास, जो डोमिनेंट क्लास है, मेंटेन्स द कंट्रोल बाय शेपिंग द थॉट्स. जैसे कि आपको कोई कपड़ा खरीदना है तो आप मॉल से ही खरीदेंगे. ये कॉन्सेप्ट, ये परसेप्शन कब से बन गया? अगर आपको कपड़ा पहनना है तो आप ब्रांडेड कपड़ा ही पहनेंगे, किसी महंगे ब्रांड का. आप सस्ता कपड़ा ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, आपके पास उसके लिए अवेलेबल पैसा भी है, लेकिन आप खुश नहीं है, आपको चाहिए महंगा पैसा. ये क्या है? एक तरह का परसेप्शन, एक हेजेमनी क्रिएट करता है. कौन करता है? डोमिनेंट क्लास करता है. ठीक है, वो डोमिनेंट क्लास जिनके पास पैसा है वो मार्केट को ऐसे ही, हाँ, घूमने के लिए, टूर करने के लिए, आप ट्रैवल करने के लिए, आप कहीं बगल के जगह को नहीं ट्रैवल करके आप वहीं जाके और 2-3 लाख रुपए खर्च करके किसी वर्ल्ड टूर पे जा, मतलब इस तरह से आपको वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. सो सोसाइटल नॉर्म्स, वैल्यूज एंड बिलीफ. सो हेजेमनिक पावर इज नॉट कोहेसिव, इट इज बेस्ड ऑन द कंसेंट ऑफ दोज हु आर डोमिनेटेड. ठीक है, यानी कि आप खुद कंसेंट दे रहे हैं. हाँ, आपको चाहिए 1,000 का जींस, नहीं मुझे चाहिए 10,000 का जींस. और कैसे 1,000 रुपये है लेकिन बस पैसा नहीं है, तो यू विल फाइट फॉर द रेस्ट 9,000 मनी. और वो कहाँ से आप लाएंगे? नो, आपको जो 10,000 का जो जींस आपको बेच रहा है वो तो आपसे 10,000 लेगा ही लेगा. आप 9,000 कहीं और से इंतजाम करिए, उसके लिए आप मेहनत करिए और कुछ करिए और कुछ, तब जाके आप इसको ले पा रहे हैं. तो इस तरह से ये लोग क्या करते हैं? आपका कंसेंट लेके आपको ये चॉइस दे रहे हैं. मॉल में बड़ा बड़ा ये सब होर्डिंग लगाएंगे, एडवर्टाइज करेंगे. तो ये लोग क्या कर रहे हैं? एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्च कर रहे हैं. ठीक है, तो इस तरह ये गेम होता है. It defines the limit of common sense of the masses. It defines the limit of common sense of masses. According to Gramsci, the bourgeois class uses the power of hegemony to rule the minds of the subaltern. Subaltern मतलब होता है नीचे वाला क्लास, कमजोर वर्ग. Hegemony is manufactured via the structure of legitimation. The civil society. It utilizes ideology, culture or history to legitimize hegemony. So hegemony is subtle, ideological influence यानी छुपा होता है, टेंसेंट होता है, आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस दैट इंश्योर्स कंसेंट एंड स्टेबिलिटी, मेकिंग पावर अपीयर नेचुरल एंड इनएविटेबल. और जो पावर जो होता है उसे वो एक नेचर होता है, बहुत दिखता है, बाहर तक दिखता है, rather than enforced through coercion. So therefore Gramsci suggests fighting the war of position first through counter hegemony and then the war of maneuver. यानी कि आप पहले अपना पोजीशन चेंज करिए और फिर उसको मैन्यूवर, उसको चेंज कर दीजिए, पूरे सिस्टम को, पूरे कॉन्सेप्ट को. तो यही वार ऑफ पोजीशन थ्रू काउंटर हेजेमनी एंड देन द वार ऑफ मैन्यूवर. ये कौन सजेस्ट करते हैं? ग्रैम्सी. ग्रैम्सी क्या सजेस्ट करते हैं? वार ऑफ पोजीशन एंड फर्स्ट थ्रू काउंटर हेजेमनी एंड देन वार ऑफ मैन्यूवर. तो यहाँ की टर्म देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है. तो सबसे पहले हमारे पास है, येलो से जाएंगे इसमें, पावर एंड हेजेमनी. सबसे पहले एक क्या है आपका? क्लोजली लिंक्ड कॉन्सेप्ट है. यहाँ पे क्या? स्टीवन ल्यूक्स. कौन है? यहाँ है आपके पास स्टीवन ल्यूक्स, इनका जो बुक है अ पावर रेडिकल व्यू, ये हो गया. फिर एक ग्रैम्सी का कॉन्सेप्ट ऑफ हेजेमनी. तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ग्रैम्सी के ही कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है. अगर हेजेमनी आता है तो ग्रैम्सी के बारे में लिखना ही लिखना है. फिर हमारे पास है ये हेजेमनी इज मैन्युफैक्चर्ड, स्ट्रक्चर ऑफ लेजिटिमेशन, लिमिट, कॉमन सेंस, डोमिनेटेड और इट इज बेस्ड ऑन कंसेंट. कंसेंट इज अ कीवर्ड. अब यहाँ पे जो नाम है हमारे पास वो क्या है? ग्रैम्सी का वार ऑफ पोजीशन फर्स्ट, वार ऑफ पोजीशन फर्स्ट, काउंटर
हेजेमनी एंड द वार ऑफ मैन्यूवर, तो ये हो गया कीवर्ड्स, और ये दिस इज द लिंकेज बिटवीन पावर एंड हेजेमनी. तो वी विल कंटिन्यू विद द सेकंड क्वेश्चन इन अनदर वीडियो. थैंक यू.